Right, today we are going to study Fermat's little theorem. Fermat was like one of the great amateur mathematician. Right, he was an amateur mathematician. He was a civil servant, but he was very fascinated about mathematics. तो कभी भी mathematics का कुछ भी question मिलता था या question देखने का मौका मिलता था, तो he was always into that. He solved this question by two, three, four, five different ways, right? And he was very keen towards that. And ये करते करते उन्होंने अपने को इतना डेवलप कर लिया था कि he has given lot many formulas and lot many things. And numbers के साथ play करना फॉर्मा को बहुत ही अच्छा लगता था कि he always want कि कुछ ना कुछ नया क्या मैं डेवलप कर सकता हूँ with theorems and all, right? तो फर्मा के दो थ्योरम्स हैं. एक आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फर्मा लिटिल थ्योरम, राइट? फर्मा लिटिल थ्योरम को पढ़ने के लिए इसके प्रूविंग वगैरह हमें देखने हैं, राइट? कि हाउ टू प्रूव दिस एंड व्हाट इज द थ्योरम. तो first I'm writing what is the theorem, right? The Fermat little theorem says that the theorem of Fermat is if P is prime and GCD of A and P is 1, then A to the power P minus 1 congruence to 1 mod P. Right? Congruence कि ये थ्योरम जो था फर्मा ने ये थ्योरम जो दिया, दिस थ्योरम ही वाज गिवन इन 1614 के अराउंड उसने ये थ्योरम दिया था, राइट? अब ये थ्योरम के प्रूविंग की बात हुई तो ही सेड कि ओके आई नो द प्रूफ बट आई विल नॉट टेल यू, राइट? फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने इसके अलग अलग थ्योरम्स को इस थ्योरम को अलग अलग तरीके से प्रूविंग किया. पास्कल का बहुत बड़ा रोल रहा, राइट? पास्कल के पास्कल सीरीज जो होते हैं उसे भी मैं बताने वाला हूँ आज, राइट? तो इसकी प्रूविंग जो होती है वो बहुत अलग अलग तरीके से वी कैन प्रूव, राइट? सो दिस P is prime number, right? And GCD of A and P is 1, then A to the power P minus 1 congruence to 1, right? This is the basic theorem. This is Fermat little theorem, right? मतलब क्या है, अगर कुछ नंबर्स से मैं समझाना चाहूँ कि exactly how this is working, right? P, let I'm supposing P is equal to 7, right? A is equals to 4, right? We know that P is prime and A is equal to 4 and GCD of 4 and 7 is 1, right? So he said कि if you will take 4 to the power 6, this will be congruence to 1 mod 7. Or we can say this 2 to the power 12 congruence to 1 mod 7. See, if you want to check this, we know that if the formula is given in this form, 2 to the power 3 is congruence to 1 mod 7. And if 2 to the power 3 is congruence to 1 mod 7, then we can say 2 to the power 3 to the power 4 is congruence to 1 mod 7. So, wow, it's working. 2 to the power 12 congruence to 1 mod 7. So, ये जो लिटिल थ्योरम है ये बहुत बड़ा थ्योरम निकल गया, राइट? फर्मा का ये लिटिल थ्योरम है. ये थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से एक जनरलाइजेशन जो हुआ वो दिया आइलर ने. जो आइलर का हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे आइलर ने किस तरह से ये दिया. टोकिनेंट एंड आइलर ने ये फॉर्मूला दिया एंड उस फॉर्मूले से he has done with that कि एक अपने तरीके से उसने इसे अपने आप को डेवलप किया, राइट?
The development was one of the great development by this, right? अरे करने देना Just बोल दे just wait for this. Someone. Right? Okay. So note it down, please. कई different proofs हैं. Yeah, right. Why not? See, in this case, what I'm saying, ki 4 to the power 6 is equal to 1 mod 7, right? 4 to the power 6 is congruent to, as it is given, 4 to the power 6 congruent to 1 mod 7. So I'm rechecking this, okay, how it's possible, right? So like if I'm writing 2 cube is congruent to 1 mod 7, right? So I guess you are understanding this. क्या है फिर से फिर भी समझा देता हूँ. This is written, this number is 8. 8, I'm saying 8 is equal to 7 plus 1, right? When I divide this by 7, this will give the remainder 1, right? This will give the remainder 1 for mod 7. Right? So 2 to the power cube is equal to 1 mod 7. So we are writing this 2 cube is equal to 1 mod 7. So 2 cube, if I'm giving power both sides, 4 power. So we know that 1 to the power 4 is always 1 only, right? So this 2 to the power 12 is equal to 1 mod 7, right? So 4 to the power 6. So this was given by first. ये फॉर्मूला क्या है वो दिखाने की मैंने कोशिश की, राइट? अब वो फॉर्मूला कैसे यूज होना है, क्या होना है, उसके पहले से इसके बहुत डिफरेंट तरीके से प्रूविंग होते हैं, राइट? अभी जितना हम लोग जानते हैं उस पर मेरी कोशिश रहेगी, राइट, इसकी प्रूविंग हम कैसे कर पाए. तो लेट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूविंग मैं देना चाह रहा हूँ. फर्स्ट प्रूविंग देना चाह रहा हूँ विथ द इंडक्शन के नंबर जो रहते हैं, या हमारे पास्कल का जो बाइनोमियल थ्योरम होता है, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू. तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए थोड़ा मैं पहले हेल्प करूंगा कि एग्जैक्टली x प्लस 1 टू द पावर n, मान लो मैं ये नंबर ले रहा हूँ, तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? इसे मैं अगर एक्सपैंड करूंगा तो दिस इज x टू द पावर n प्लस nc1. ये एक नोटेशन होता है nc1, राइट? इसका मतलब होता है ncr, राइट? ये NCR कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, राइट? अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? इफ आई एम राइटिंग फैक्टोरियल 5, तो मींस 5 into 4 into 3 into 2 into 1, राइट? और फैक्टोरियल 5 इज 5 into फैक्टोरियल 4, राइट? अगर मैं फैक्टोरियल 10 लिख रहा हूँ तो 10 into फैक्टोरियल 9, ये 1 तक जाएगा मल्टीप्लाई होते हुए. ये डिनोट होता है NCR से. n चूज आर भी से बोलते हैं, या n कॉम्बिनेशन आर भी बोलते हैं, जिसका मतलब है द फॉर्मूला फॉर दिस इज फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r, राइट?
factorial n, this is given, and factorial r, this is given, and factorial 0 ऐसे भी डिनोट करते हैं हम लोग, या factorial 0 को ऐसे भी डिनोट करते हैं. दोनों तरीके से ये नोटेशन अपने आप में होता है. प्लीज नोट इट डाउन. So this formula is NC2 up to 1. How to solve this? जैसे मैंने लिखा 10C4. Like 15C3. अगर मेरे को ये निकालना है तो what is meaning of this? Factorial 15 by factorial 12 factorial 3. Right? This is 15 into 14 into 13 upon factorial 12 will be cancelled out with factorial 12, and factorial 3 is 3 into 2 into 1. 3, 5, 2, 7. This is 5 into 91, 455. Right? So you can find different values. जैसे भी requirement हो, you can find different values, right? ये एक तरीका होता है. You can find the values of NCR की values होती हैं, right? The values of NCR, right? So this is the formula for any x plus 1 to the power n, right? X to the power n plus NC1, x to the power n minus 1, NC2, x to the power n minus 2, up to 1 to the power n, or this is written as 1, right? So if I'm saying like from a theorem we were discussing, if I'm saying 1 to the power p is congruent to 1 mod p,
1 to the power anything be 1 only, right? And when we are dividing this by p, you are getting 1 only, right? So what we can do for, if I'm writing a plus 1 to the power p, so this will be a to the power p plus pc1 into a to the power p minus 1 plus pc2 a to the power p minus 2 up to pc p minus 1 a plus 1, right? If you can see this, this is divisible by a, this is divisible by a, this is divisible by a, this is divisible by a. The rest, like, we are getting 1 after dividing this by a, right? So I can say 1 a plus 1 to the power p is equals to, this must be the factor of, this must be the factor of p, p times of some number k plus 1, or, right, sometime, like every term, sorry, every term we are getting a, to a times of k plus 1, right? In this a is coming, in this a is coming, so you can take out a common, to a into k plus 1 is coming, right? Or if I'm writing this as for the case of p, so if I'm saying कि a to the power p plus 1, ये दो टर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो rest of the term is pc1 a to the power p minus 1 pc2 a to the power p minus 2 up to pcp minus 1 a. So see, these terms are divisible by p. These terms are divisible by p, right? So 100% we can say a plus 1 to the power p is equal to a to the power p plus 1 plus p into some number k1. Note down, everyone, please note down to this, then I'm going further. मीन्स वी हैव वेरी गुड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, राइट? ये एक अच्छा अरेंजमेंट हो सकता है नंबर का, क्या अरेंजमेंट हो सकता है उस पर अभी बात करता हूँ. आई होप एवरीवन इज नोइंग दिस, क्या क्या पॉसिबिलिटी है फॉर बाइनोमियल थ्योरम. सो नाउ आई एम कमिंग फॉर Fermat-Little theorem, right? So now we'll use this Fermat-Little theorem in our proof, right? So this is by induction. याद होगा मैंने आप लोगों को ये टीच किया था कि this induction, right? Induction says that let a to the power p is congruent to a mod p. The equation was given a to the power p minus 1 congruent to 1 mod p. If I'll multiply both side a, so definitely I'm getting a to the power p congruent to 1 into a, that is a only mod p. A to the power p congruent to a mod p, right? If I'm getting this number, right? So for a is equal to 1, this is true. So this will be a to the power p congruent to a to the power p congruent to 1, or a, and we have to put value of a as 1, so a to the 1 to the power p congruent to 1 mod p, right? Now if this is given, and let a to the power p congruent to a mod p is true, right? अब अगर मैं
अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं एंड नाउ आई एम सेइंग कि अगर मेरे को यहाँ से a plus 1 to the power p के लिए अगर मैं प्रूव कर पा रहा हूँ then 100% वी कैन से कि अपने आप इसे प्रूविंग होनी चाहिए। तो a plus 1 to the power p अभी मैंने देखा कि इज इक्वल टू a to the power p plus 1 होगा फॉर मॉड p। इज इट ओके? मैंने दोनों चीजें प्रूव करके आपको दिखाई थी। यहाँ पर ध्यान दो, ये p का टर्म आ रहा है, अगर मैं p से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये टर्म तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, राइट? नो रिमाइंडर इज देयर, ओनली a to the power p plus 1 will be there. So a plus 1 to the power p congruence to a to the power p plus 1 mod p. And from this, the true statement, we can say a to the power p is nothing but a only. So a plus 1 to the power p is congruence to a plus 1 mod p. Look into this. If I'm saying this is some a to the power p congruence to a mod p, और अगर मैं a से डिवाइड कर दिया तो a to the power p minus 1 congruence to 1 mod p। तो हमने इंडक्शन के थ्रू फर्मा का थ्योरम, लिटिल थ्योरम प्रूव कर लिया। नोट डाउन एवरीवन प्लीज। This is the binomial theorem, right? This is the binomial expansion, right? उसमें मैंने पहले बताया binomial expansion कैसे होता है और ये कैसे वर्क करेगा पूरा, हाँ? राइट, बाइनोमियल एक्सपेंशन पहले मैंने बताया, तो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। बाइनोमियल का एक्सपेंशन x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1, ये एक बाइनोमियल थ्योरम, मतलब बाइनोमियल ने एक ऐसा थ्योरम दिया कि फॉर एनी नंबर यू वांट टू एक्सपैंड ना, वी कैन एक्सपैंड द नंबर्स, राइट? कैसे हो सकता है, कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चलो मैं थोड़ा सा बाइनोमियल के बारे में आप लोगों को बता दूं जो पास्कल ट्रायंगल के थ्रू होते हैं। दिस इज 1 1 2 1, right? 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 add 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1, and you can go on, right? 21 35 35 21 7, then it's going on, right? You can go on. ये है क्या? ये पूरा चार्ट जो है, ये चार्ट है when you want to expand the number, right? ये x है, ये x plus 1 x plus y का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ध्यान दो। x plus y the whole square is, first term is x square, then 2xy plus y square। उसके बाद वाला जो नंबर है वो x प्लस वाई का होल क्यूब है, ध्यान से देखो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। उसके बाद का जो नंबर है वो x प्लस वाई टू द पावर 4 के कोफिशिएंट है, राइट? राइट, उसके बाद ये एक्सपेंशन होता है। तो इसी एक्सपेंशन को अगर मैं x प्लस वाई टू द पावर n के लिए एक्सपेंड कर रहा हूं तो दिस विल बी x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर अप टू y टू द पावर n, राइट? मैं ये पूरा का पूरा एक्सपेंड कर सकता हूँ, right? X to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 y nc2 x to the power n minus 2 y square up to y to the power n, right? ये एक्सपैंड करने पर ये पूरा इस तरीके से नंबर्स आते हैं। ये एक्सपेंशन है x प्लस वाई टू द पावर n का, राइट? तो ये बाइनोमियल का एक एक्सपेंशन होता है, वो मैंने आपको दिखाया, राइट? इसमें अच्छी बात और मैंने क्या की कि मैंने y की जगह पर x ले लिया, राइट? y की जगह पर x ले लिया, y की जगह पर 1 ले लिया, तो वो एक्सपेंशन और आपको थोड़ा सा सिंपल दिखने लगेगा, y के टर्म्स नहीं आएंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।
पहले इसे नोट करें, एक एक करके मैं ऊपर वाले को फिर से दिखाऊंगा ना, तो आराम से सब वो भी दिखाऊंगा, एक एक करके नोट करें। Joined everyone? Yeah, done. I guess everyone noted down. So look into this again, right? एक एक करके ध्यान से देखना. Understand this part. Yes, Dhuru, just a minute, beta. Yes, please. यस सर, मतलब मेरे को जो इंडक्शन से जो आपने प्रूव किया था उसकी लास्ट 2 लाइंस नहीं समझ आए। सब दिखाऊंगा बेटा, जस्ट वेट ना, एक बार नोट कर लेने दो ऊपर का सभी को, कुछ लोगों का मिसिंग है वो। श्योर सर, नो प्रॉब्लम। Done everyone? Yes, Sujal. Hope done everyone. See now the induction proof. What this proof is? I'm saying ki let's suppose what Fermat said is true, right? So if it's true, then a to the power p minus 1 congruent to 1 mod p, right? If I'll multiply both sides by p, I'm getting a to the power p is equals to, right, a mod p, right? For 1, a is equal to 1. Obviously, you will put the value of a as 1, to 1 to the power p is equal to 1 mod p is true. For any other value, right, true. So a to the power p congruent to a mod p is true, right? We are saying that this will be true. So if these two statements are true, so we have to understand this, right? इसे मुझे थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा. And if this will be true for this, अगर इसके लिए ये true होगा तो मैं बोल सकता हूँ always true ना, a+1 के लिए. तो what I am doing कि a+1 के लिए I'm saying कि let a+1 to the power p. If I'll expand this will be a to the power p plus pc1 a to the power p minus 1 plus pc2 a to the power p minus 2 up to 1, right? अब ये पूरे टर्म में इसके पहले आ रहा होगा p c p minus 1 a, right?
So what I am proposing here, what I am saying कि a to the power p plus 1 को मैं छोड़ दूं, इसके अलावा मेरे पास pc1 a to the power p minus 1 plus pc2 a to the power p minus 2 up to pcp minus 1a, ये टर्म बच जाएंगे। एंड ये पूरे टर्म में, इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस, इस पूरे टर्म में जो आपके पास आ रहे हैं pc1 pc2, तो ये जितने भी टर्म है ये सब में p के टर्म्स जरूर आएंगे, दिस और p प्राइम है मेरे पास, राइट। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि दिमाग में आपके नहीं आ रहा हो तो इट्स नॉट गुड। अगर मैं बोल रहा हूँ pcr, ये कोई नंबर है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, मैं ये बोल रहा हूँ, राइट। मेरा स्टेटमेंट है pcr, राइट, इफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and r is less than equal to p minus 1, right। अगर r is equal to 0 ना हो, r is equal to p ना हो, तब के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर ये स्टेटमेंट को मैं बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ये स्टेटमेंट यूज हो रहा है तो मैं आपको फिर भी ये पूरी तरह से एक्सप्लेन करना बनता है, राइट। मैं बोल रहा हूँ कोई नंबर है, मान लो 7, तो 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5 7c6, इनमें से कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हो तो दैट दिस मस्ट बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, राइट। ये नंबर हमेशा 7 से डिविजिबल होगा। देख लेता हूं कैसे, ध्यान से देखो। फर्स्ट नंबर में 7 केवल आएगा, सेकंड नंबर में 7 इंटू 6 बाई 2 आएगा, थर्ड नंबर में 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2 आएगा, राइट। इसी तरह से सभी नंबर चल रहे हैं। आप देख सकते हो 7 को एक्सपैंड जब हमने किया था तब भी क्या आ रहा था, फर्स्ट को छोड़ दो, लास्ट को छोड़ दो, हर एक नंबर ये 7 21 35 35 21 7, हर एक नंबर में हमेशा यू आर गेटिंग मल्टीपल ऑफ 7, एवरी टाइम यू आर गेटिंग मल्टीपल ऑफ 7। हर एक नंबर में आपके पास 7 आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर। 7c0 में नहीं आ रहा है एंड 7c7 में नहीं आ रहा है, राइट। ये दोनों को छोड़कर यू आर गेटिंग ऑलवेज यू आर गेटिंग 7 का फैक्टर। तो कोई भी प्राइम नंबर होगा तो आई एम सेइंग कि कोई भी मान लो प्राइम नंबर है, ध्यान से समझना एवरीवन, अटेंटिव, ध्यान से समझना। अगर कोई भी मेरे पास अगर कोई प्राइम नंबर है और उसके साथ में मेरे पास r है, राइट, तो PCR का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल P बाई फैक्टोरियल P माइनस R फैक्टोरियल R। अगर P मेरा प्राइम नंबर है तो 100% मैं श्योर हूं कि P माइनस R से, राइट, बड़ा नंबर है और डिविजिबल नहीं होगा P माइनस R से, और ये R से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई नंबर 7 है तो 7 के नीचे का नंबर कभी भी 7 को डिवाइड नहीं कर पाएगा अगर वो नंबर 1 और 7 ना हो। अगर 1 और 7 ना हो तो उसके नीचे के नंबर को कभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। Are you getting this? Okay. Pratyush, are you there? Pratyush, are you there? Okay. So always this will be divisible, right? ये भी कंडीशन मेरे पास आ गया। तो अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ PC1, PC2, PC3, PC माइनस 1, ये जितने भी वैल्यूज होंगे ये हमेशा P से डिविजिबल होंगे। ये सब P से डिविजिबल हैं, तो मेरे पास जो बचेगा वो a टू द पावर P माइनस 1 ही बचेगा। मतलब अगर मैंने एक्सपैंड किया a प्लस 1 टू द पावर P को, ये टर्म बच रहा है, और इसके अलावा जो टर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई P। सो मैं लिख सकता हूं, ये पूरा कहानी क्या था उसे समझो। मैं ये लिखने के लिए ये पूरा कहानी कर रहा हूं, इफ आई एम राइटिंग a प्लस 1 टू द पावर P दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू a टू द पावर P प्लस 1 mod P।
राइट। अब ये मेरे पास है एंड वी नो दैट हमने इंडक्शन पे पहले ही देखा हुआ था कि a प्लस वन पी इज इक्वल टू a प्लस वन मॉड p, ये होना चाहिए, राइट। हमने देखा a के लिए ट्रू है, a प्लस वन के लिए भी ये ट्रू हो गया। अगर a प्लस वन के लिए ये ट्रू हो रहा है तो याद करो हम लोगों ने क्या रखा था, फंडामेंटल हमारे पास क्या आया था उससे, क्या बोल सकते हो इसके लिए, a प्लस वन टू द पावर p इज ट्रू फॉर ऑल। अगर ये ट्रू फॉर ऑल है तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला किया a टू द पावर p माइनस वन कॉन्ग्रेंस टू वन मॉड p, ऐसे भी आप याद रख सकते हो इस फॉर्मूला को, या a टू द पावर p कॉन्ग्रेंस टू a मॉड p, आप ऐसे भी फॉर्मूला को याद कर सकते हो, राइट। ख्याल क्या रखना है इसमें, p जो है वो प्राइम नंबर है, सेकंड a और p का जीसीडी जो है वो 1 है। Hope everyone is getting this. Okay. Yes, यानी एक बार पूरे को नोट कर लो, काफी बड़ा सा मैंने ये कर दिया है, तो आई होप यहां तक में इट विल बी क्लियर, राइट। नोट इट डाउन प्लीज, एंड एनीवन वांट टू डिस्कस एनीथिंग, यू हैव टाइम फॉर दैट। यस बेटा, आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाओगे, मैं लॉग भी रखूंगा मीटिंग, क्योंकि कुछ न्यूसेंस चल रहे हैं कुछ दिनों से एंड बहुत गंदे न्यूसेंस चल रहे हैं, तो आई डोंट वांट कि उस तरह का न्यूसेंस हो, इसलिए मैंने ये करके रखा हुआ है। इफ यू वांट यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, राइट। मीटिंग लॉक रहेगा, उसमें यू कैन मैसेज मी। यस ज्ञानी, प्लीज। सर आपने जो एरो वाला स्टेप दिखाया है तो उसका वो स्टेप नहीं समझा मुझे कि a रेज टू p प्लस वन से a प्लस वन कैसे हुआ। a रेज टू p, अरे वो तो हमने अज्यूम करके ही चला था ना, a टू द पावर p इज इक्वल टू a मॉड p। हाँ हाँ ओके ओके सर, यस सर, अंडरस्टूड। वो तो हमने अज्यूम ही किया था ना। यस सर। यस अमन। सर आपने जिस स्टेप पे बाइनोमियल में छोड़ा आपने उसी स्टेप से कंटिन्यू किया ना सर, मतलब ये दोनों मिला के आपने प्रूव किया ना सर? अब दोनों क्या तीनों कह लो, पहले मैंने बाइनोमियल बताना चाहा, बाइनोमियल के बाद में मैंने बताना चाहा ये क्यों डिविजिबल p से होगा, राइट, कि PC1 PC2 PC3 ये सब क्यों डिविजिबल होंगे वो मैंने बताना चाहा, उसको क्लियर किया। एंड उसके बाद मैंने इंडक्शन को जो हमने पहले पढ़ा हुआ था उसको भी इसमें मिलाया, फिर ये तीनों को हमने मिक्स करना चाहा, और फिर एक प्रूफ आया ना सर? हाँ। ओके। Okay, everyone done? इट्स अ ब्यूटीफुल थ्योरम, मतलब एक बहुत बड़ा काम है, बट ये माना जाता है कि ये जो थ्योरम है, जल्दी नोट कर लो फिर मैं थोड़े से आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ।
Done everyone? अच्छी बात क्या है कि ये फर्मा के जो थ्योरम जो क्लेम किया फर्मा ने कि उन्होंने दिया था ये थ्योरम पहले से लेबनीज ने भी दिया था और 2 और लोगों ने पहले से ये थ्योरम दे दिया था, बट उन्होंने पब्लिश नहीं किया था अपने वर्क को, राइट। तो ये वर्क इन्होंने पब्लिश किया एंड ही हैज अ वेरी गुड, लाइक उनके अपने वर्किंग जो भी थे, वेरी गुड वर्किंग ऑन दैट एंड ही गॉट द नेम ऑफ दैट, राइट। बट इसके पहले ये थ्योरम को 3 टाइम्स पहले प्रूव किया जा चुका था, राइट। एंड उसके पहले और भी कहीं होगा तो वी डोंट नो, राइट। बट नोन है ये कि उसके पहले इसकी प्रूविंग हो चुकी थी फर्मा थ्योरम की, राइट। एंड इस ये बड़ा काम का थ्योरम है, लेकिन जब आइलर का थ्योरम जब पढ़ोगे तो लगेगा वाओ ग्रेट, मतलब उसने ऐसा काम कर डाला जो हर चीज को उन्होंने जनरलाइज कर डाला। बट हम लोग एक इनिशियल फेज से चल रहे हैं, तो इनिशियल फेज से हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग फर्मा के थ्योरम को देखना चाह रहे हैं कि फर्मा ने किस तरह से वर्क किया एंड फर्मा थ्योरम को कैसे यूज करेंगे हम लोग, राइट। सो ऑब्वियसली इस पर अब हम लोगों की बात हुई कि दिस इज द फर्स्ट प्रूफ, राइट। सेकंड प्रूफ एक मैं कोशिश करता हूं बताने की, राइट। तो वेरी केयरफुल, ध्यान से समझना सेकंड प्रूफ, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा 1-2 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कर लें, राइट। अब एक बहुत बड़ा सेगमेंट आपके पास खुलने वाला है फर्मा से। इफ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन लाइक 3 to the power 31 mod 7, राइट। इसको सॉल्व करने आपको। अमन एंड धर्मिल कुछ बोलना चाह रहे हो आप लोग? यस धर्मिल। Yes, Dharmil. Unmute yourself. No, sir, by mistake. कोई नहीं। तो ध्यान दे के देख रहे होगे क्वेश्चन में तो कुछ, अरे अमन हट, क्या कर रहा है? ध्यान से। फर्मा की आत्मा रोएगी, मत कर ऐसे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मा, राइट, फॉर्मूला जो था वो था एनी ए टू द पावर p minus 1 congruence to 1 mod p, p is prime, राइट। एंड a एंड p का जीसीडी जो है, ऐसे लिखने का मतलब जीसीडी होता है ना, ये ब्रैकेट लगाने का, मैं जीसीडी यहाँ ना भी लिखूं तो समझना होता है आपको जीसीडी है। एलसीएम लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, राइट। एलसीएम इस तरह से और जीसीडी पहले भी मैंने बताया होगा, बट नो प्रॉब्लम, एक बार फिर से, राइट। सो अब प्राइम हमारे पास गिवन है, जीसीडी ए पी का 1 है एंड ये मेरे पास है, राइट। अगर मैं सीधा रेप्लिकेट करूं तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, p मेरे पास 7 है, 7 minus 1 6 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7, राइट। तो मैं हमेशा जब भी mod 7 से डिवाइड करूंगा 3 to the power 6 को, यू विल गेट 1 ओनली, राइट। मुझे चाहिए 31 बाजू का है 30 के, ओके। मैंने दोनों तरफ पावर 5 दे दिया, पावर 5 दे दिया, तो दिस विल बी 3 to the power 30 congruence to 1 mod 7, राइट।
तो 3 to the power 30 कॉन्ग्रुएंस टू 1 है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 to the power 31 कॉन्ग्रुएंस टू 3 mod 7. So what you are getting is 3 only. Very good Devans, Aparna very good, Snikta very good, Aditya very good. ध्रुव क्या कर रहा है? Go, I guess you want to note it down. मेरे ख्याल से कोई वैसा खास है नहीं नोट करने का, फिर भी देख लो किसी के गड़बड़ हुए हो तो। ये सब कितने परेशान करने वाले क्वेश्चन कितने स्मूथ तरीके से आपको आंसर दे सकते हैं वो ध्यान दो। राइट। सेकंड, 29 to the power 25 mod 11. वेरी गुड एवरीवन। और देख लें आप साथ में 2511 ऑब्वियसली मॉड 11, राइट। मॉड 11 मेरे पास है तो p इज इक्वल टू 11 गिवन है। a यहाँ पर मेरे पास 29 है, a 29 और 11 का GCD भी मेरे पास 1 है, तो परफेक्ट जगह है जहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ फर्मा, राइट। तो 29 to the power 10 is equivalent to 1 congruence to 1 mod 11, a to the power p minus 1 congruence to 1, right।
अब ये मेरे पास आ गया यहाँ तक, तो बिना किसी दिक्कत के मुझे दिखाई दे रहा है कि 29 में कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मेरे को पहुँचना है कहाँ तक, राइट, मुझे 25 पावर तक अपने को ले जाना है, राइट। 29 टू द पावर 20 मैं कर दिया तो भी 1 ही रहेगा मॉड 11, राइट। अब मेरे को चाहिए 29 टू द पावर 5, मेरे को जो भी आएगा वही मेरा आंसर होना चाहिए, राइट। तो 29 टू द पावर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो आई नो दैट 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 3 जा 33, तो -4 टू द पावर 5 मॉड 11 ये आ सकता है। सुबह इसमें थोड़ी छोड़ेगा बेटा, 33 आ गया तो -4 टू द पावर 5 मॉड 11, इज इट ओके? इज इट ओके एवरीवन, राइट। थोड़ा सॉल्व करेंगे ना। ये आ गया -4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 16 इंटू 4, राइट। 3 बार माइनस है तो एक माइनस साइन, इक्विवेलेंट टू, अगर मैं इसे 11 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा -5, ये भी आएगा 5, ये आएगा 4 मॉड 11। मॉड की प्रॉपर्टी याद करो, इंडिविजुअल सबको डिवाइड करने पर भी वही आ रहे हैं मेरे पास, राइट। और ये पूरा मेरे पास क्या आ गया, -5 5 जा 25 इंटू -100 मॉड 11, 11 9 जा 99, तो -99 -1 मॉड 11, राइट। और इसका मतलब हुआ कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉड 11। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। फिर से देख लो बेटा पूरा। हमने स्टार्ट यहाँ से किया, 29 जो गिवन था, तो पहले मैंने देखा क्या मेरे फॉर्मूले पर ये फिट बैठ रहा है, तो हमने देखा हाँ फॉर्मूले पर फिट बैठ रहा है। एंड वहां से हमने फॉर्मूला लगाया तो a टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड p, राइट। तो हमने 29 टू द पावर 10, a 29 था, p वाज 11, 11 माइनस टू 1 हमने कर दिया, इसमें पावर स्क्वायर कर दिया तब भी यही आ गया, लेकिन अभी भी मेरे पास 5 पावर बचे हुए हैं, तो हमने कहा 29 टू द पावर 5, राइट। अब ये मेरे को चाहिए, अब 29 टू द पावर 5 चाहिए, तो 29 को अगर केवल 29 की बात मैं करूं, एक नंबर 29 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, स्मॉलेस्ट नंबर चाहता हूं मैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है वो आ जाएगा -4, राइट। स्मॉलेस्ट नंबर का हो जाएगा मतलब -4, वो -4 टू द पावर 5 हो गया। -4 टू द पावर 5 को मैंने 5 के लिए, राइट, ये मैंने 4 स्क्वायर इंटू 4 लिख दिया। 4 स्क्वायर का मतलब 16, फिर 4 स्क्वायर का मतलब 16 एंड 4 हो गया। 11 से डिवाइड करूंगा तो आई एम गेटिंग 5 5 एंड 4, 5 5 जा 25 इंटू 4 विल बी 100, तो -100 हो गया, जिसमें मैं लिख रहा हूँ -100 को -99 -1, राइट। एंड उसमें मैंने डिवाइड किया तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल, -1 बच गया मॉड। अब 29 जो मेरे पास है वो कॉन्ग्रुएंस टू -4 मॉड 11 मैं लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, 11 से मैं 29 को ऐसे लिख सकता हूँ 33 - 4 इज इक्वल्स टू 33, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, बचेगा क्या -4 अगर मैंने 11 से डिवाइड किया है तो, राइट। दैट्स द रीजन आई एम राइटिंग 29 एज -4 मॉड 11 अनमोल। इज इट ओके, राइट, इज इट ओके? ओके, तो अब ये देख ले भौमिक, एक बार भी आप लिखोगे बेटा 100% मेरे को एकदम मैं आपके लिए आऊंगा ना, तो एक बार भी आप लिखोगे तो 100% आऊंगा बेटा। तो
16 को 11 से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 5। अगेन 16 को मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 5 एंड 4 था, 4 को 4 रहने दिया। राइट, एंड आंसर क्या आया आखिरी में, ये सब लोग देख रहे हो। अब आखिरी का आंसर आप लिख के बताओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड आदिनाथ, देवांश वेरी गुड। -10 इज इक्विवेलेंट टू 10 mod 11। 10 mod 11। डन। ओके, नाउ अब नो गड़बड़ प्लीज। मेरी 100% मेरी एक्सपेक्टेशन अब है कि आप लोगों को सॉल्व करने हैं, एंड नाउ आई वांट आंसर। राइट, मुझे अब आंसर चाहिए होंगे और सही आंसर चाहिए होंगे। देखता हूं, थोड़े से क्वेश्चन को मैं टफ भी करने की कोशिश करूंगा। 128 to the power 129 mod 7। mod 7। थैंक यू सुजल, एक बार देख लेता हूं बेटा, थैंक यू। वेरी गुड। अमरनाथ थप्पड़ खाएगी, क्या लिख रही है? 0 लिखने का मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या ये 7 से डिविजिबल है? थोड़ा सोचेगी तो लिखते समय क्या लिख रहे हैं। वेरी गुड एवरीवन। पहले उसे 7 से डिवाइड करके क्वेश्चन मार्क हटा ले देवांश। 7 से डिवाइड करके पहले देख लो कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर यू आर गेटिंग। वेरी गुड जबेल, वेरी गुड। अभी चेक करता हूं मानस, अभी चेक करता हूं, आओ देखते हैं। वेरी गुड सुजल। सी
पहले तो मैं आराम से ही 128 को डिवाइड कर लूं यार 7 से। ये तो बड़ा प्यारा सा केवल 2 बच गया। मतलब दिस क्वेश्चन इज सिंपल एज 2 टू द पावर 129 mod 7। मैं बोलूं क्यों इतना लंबा चौड़ा काम करूं, मैं क्वेश्चन को ही ऐसा कन्वर्ट कर लूं जो मेरे को थोड़ा सा आसान कर जाए क्वेश्चन, राइट। तो मैंने क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अब ये मॉडिफाई करने से मेरे को फायदा क्या हो गया इसको देखना। मॉडिफाई करने से क्वेश्चन को व्हाट आई एम गेटिंग 2 टू द पावर 129 mod 7। नॉट रिक्वायर्ड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अगर यही डिवीजन में ना 7 की जगह मैं 28 दे देता डिवीजन के लिए, प्रत्युष समझना बात को बेटा, 7 की जगह मैं 28 दे देता, तब मैं बोलता एक बार 7 से निकाल लूं, एक बार 4 से निकाल लूं, नाउ अप्लाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को कोई नया नाम हम लोग को देना होगा, समझो। चाइना का नाम लेना इज नॉट गुड, नॉट गुड। तो आप सब लोगों का ये काम है, क्लास आज खत्म होगा तब तक आप सोच के रखें, हाँ, एक एक नाम अच्छा अच्छा सोच के लिख के रख लें, उतनी देर में मैं पूछूंगा लास्ट में, राइट। तो 2 टू द पावर 129 mod 7, राइट। अब स्टार्ट करता हूँ। 2 टू द पावर 129, तो ऑब्वियसली 2 टू द पावर means a to the power p minus 1 equivalent to 1 mod p, that's 7 only, right। अब 2 to the power 6 मेरे पास 1 हो गया, मेरे को 128 तक पहुंचना है। 128 6 के पावर में मैं जाऊं तो 21 तो सीधा दिख रहा है, मतलब 2 to the power 6 to the power 21, 1 to the power 21 mod 7, right, means this is coming as 2 to the power 126, right, 1 mod 7। अब इसके बाद भी मेरे को पहुंचने के लिए 3 पावर और चाहिए, तो 3 पावर्स और मेरे को देना है। तो मैंने 2 टू द पावर 3 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 129 इक्वलेंट टू 2 टू द पावर 3 mod 7। बट और अच्छी बात क्या है, 2 टू द पावर 3 इज नथिंग बट 8, 8 इज 1 mod 7। इज इट ओके एवरीवन? Is it okay? How many of you got write down yes? मैं काउंट कर रहा हूं इसलिए जल्दी ना। वेरी गुड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, नो प्रॉब्लम बेटा। अभी जो देख रहे हैं पीयूष, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग बाद में। वो पुराने वीडियोस तुमने नहीं देखे हैं शायद, लगता है मैंने वीडियोस डाल भी दिए थे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं 128 टू द पावर 129, ये थोड़े सिंपल पे जो जा रहा है उसे एक क्वेश्चन तो बनता है mod 70। टेक योर टाइम। वेरी गुड सुजल, वेरी गुड उदय।
Sanya, very good. Vinit, very good. Manas, not bad. Do it fast, everyone. Dhruv, very good. Tantra. ओके, देखें मानस, थोड़ा कंसंट्रेट कर बेटा। माइनस में नहीं लिखेगा आंसर, प्लस में कर उसको। ओके, आई गेस डन एवरीवन। प्लस माइनस चेक कर लेना एक बार। Okay, so 17 into 7, right? 17 7 ja 190, right? प्लस 9, तो ये 128, तो मेरे पास 9 ही आ जा रहा है, राइट? और 9 टू द पावर 129 मॉड 17, और ये 17 मेरा प्राइम नंबर है, राइट? और 9 मेरा जो नंबर है वो 17 के साथ जीसीडी बन दे रहा है, तो परफेक्ट जगह है मेरे पास अप्लाई होने के लिए। 9 टू द पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 7। कितना प्यारा नंबर, नहीं? बट अभी देखना, मैंने बोला है ना, थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो उसके बाद पता चलेगा ओके ये तो मतलब बहुत ही छोटी बात हो गई, हम लोग तो बहुत बड़ी बात जानते हैं, राइट? तो 9 टू द पावर 16 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 17, राइट? और मुझे पावर पहुंचना है कितना? 129 पे। 129 के लिए अगर मैं 16 के पावर को ही मेरे को बढ़ाना है, राइट? तो 128 तो चला ही जाता है अपने आप में, राइट? तो 9 टू द पावर 16 कितना पावर पे 128 चला जाएगा? तो 8 पावर पर 128 चला जाएगा। मॉड 17 8 पावर हमारे पास आ गया, मतलब 9 टू द पावर 128 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 17, एंड दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 टू द पावर 129 इज 9 ओनली,
राइट। तो आंसर आपके पास आया 9 to the power 129 congruence to 9 mod 17। इज इट ओके एवरीवन? कितने लोगों का सही है? जल्दी जल्दी बोल दो। ध्रुव, वेरी गुड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओह वाओ, ग्रेट। लेट k is equals to 2008 square plus 2 to the power 2008, right? Find unit digit of k square plus 2 to the power k, right? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस लेवल को मैंने बढ़ाने की कोशिश की, राइट? एक बार जल्दी से आप ट्राई करें। यूनिट डिजिट निकालने, राइट? ध्यान से। यूनिट प्लेस ऑफ k स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर k, और k की वैल्यू बड़ी सी दी हुई है ये। वेरी गुड उदय, अमन वेरी गुड, तनीश एक बार और बेटा, सुयस वेरी गुड, पीयूष एक बार और बेटा, शुभम थोड़ा सा और ट्राई करो, वेरी क्लोज, अमन, पीयूष नहीं नहीं नहीं, एवरेज कर ले। फाइव का मतलब, जीरो का मतलब, ये जीरो तेरे को बहुत पसंद आ रहा है। पीयूष, शुभम वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड। नमन, वेरी गुड। आए देखते हैं ना, इसमें मैं डिस्कशन की तरफ जा रहा हूं थोड़ा सा। तो एवरीवन, राइट, फर्स्ट मैं चांस यहाँ पर दूंगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, जो भी इसको बताना चाहें। जिनके भी आंसर 6 आए हैं, यू कैन रेज योर हैंड, राइट। हाउ यू आर डूइंग, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। यस अमन, स्टार्ट विद अमन। Yes, sir. Sir, Yeah. 2008 is equal to 8 mod 100. 100, why you are going for 100? सर क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना था तो मैंने पहले भी 100 से किया हुआ था। तो 10 से ही चलता ना, 100 हाँ सर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो सर फिर 8 आया, तो फिर 8 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 8 आ गया सर। वो 2 टू द पावर 8 कैसे आया? सेकंड सर वाला मॉड, सर टू द मॉड 8, सर 8 था ना रिमाइंडर सर, जब 2008 को 100 से डिवाइड करते तो। हाँ, प्राइम नंबर तो है नहीं मेरे पास, जो 10 तो है वो प्राइम नंबर तो है नहीं, मैं अप्लाई तो कर ही नहीं सकता हूँ यहाँ पर। हाँ, गड़बड़ जाएगा ना बेटा। नेक्स्ट, दूसरा जिनका आया है वो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। फॉर्मा लगाने के लिए आपको इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 10 पे तो ये लगेगा नहीं। नहीं चलता है, चलता है। यस, उदय सेकंड आया था, उदय का। पीयूष, धर्मिल, रेज योर हैंड। यस, उदय एक्सप्लेन। ये सर साइक्लिसिटी यूज किया था इसमें। कैसे साइक्लिसिटी क्या यूज किया? सर फॉर 4 पावर्स में 2 का जो यूनिट डिजिट है वो, मतलब 2 के हर 4 पावर्स में यूनिट डिजिट रिपीट होता है। तो 2008 इज डिविजिबल बाय 4, मतलब 0 mod 4 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 6 होगा। हाँ, एंड 8 का भी वैसे रहता, तो फिर 8 का स्क्वायर ही है, तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते, तो 4 आ जाता है यूनिट डिजिट। वेरी का डिजिट 0 आ गया, और फिर k स्क्वायर का भी 0 होगा, बट k इज डिविजिबल बाय 4, so 2 to the k also has unit digit 6. या फिर तो उसको कैलकुलेट करना ही रह गया सिर्फ ना। वेरी गुड, वेरी गुड। धर्मिल, सर सेम साइक्लिसिटी से किया। सेम, और कोई? ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 10 की बात मैं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे को जो दिखाई दे रही है डिविजिबल बाय 10 की बात कर रहा हूँ, मॉड 10 की बात कर रहा हूँ। तो 2000 का स्क्वायर अगर मेरे पास है तो ओनली आई एम गेटिंग 8 स्क्वायर mod 10 for 2000 of 8 का स्क्वायर ना। आगे के नंबर से तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस, राइट। नाउ 2 to the power, right, 20008, right, you know that 2 to the power 4 always give you 6 when divided by 10, right। 10 से डिवाइड करूंगा तो वो 6 ही देना है अपने आप, राइट। अब ये 2 to the power और 6 के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, 6 is a number that repeat itself। 6 ऐसा एक नंबर है कि आप जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाओगे ये अपने आप को रिपीट करता जाएगा। सो सी, इफ आई एम सेइंग कि अगर इसके पावर मैं बढ़ाता जा रहा हूं एंड जितना भी पावर मैं बढ़ाता जाऊं, तो दिस इज डिविजिबल बाय 502, राइट। तो 502 if power I am giving, तो 6 to the power 502 mod 10 में this will be again equal to 6 only mod 10। Are you getting this? क्योंकि मेरे को यूनिट प्लेस का नंबर चाहिए, यूनिट प्लेस तो इसका 6 ही आएगा। 6 into 6 36 into 6 6 into 6 6, unit place will be always 6, right। So this number is fixed, right। तो ये मेरे पास इसके यूनिट प्लेस हैं वो 6 आ गए, इसके यूनिट प्लेस मेरे पास हैं वो मेरे पास 8 स्क्वायर मीन्स, इसे भी मैं लिख दूं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 mod 10, राइट। वाओ, ग्रेट। तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर मेरे पास 4 आ गया, सेकंड नंबर आ गया mod 10 के लिए, तो दिस इज 0 mod 10।
I guess without any problem everyone is getting this, right? अब ये k की वैल्यू जो आ गई, k is equivalent to 0 mod 10, राइट? k अगर मेरे पास 0 आ जाता है तो ऑब्वियसली k 0 है और 2 to the power मेरे को mod 10 उसी के फॉर्म में मेरे को आगे बढ़ते जाने हैं, राइट? सो अब मेरे को यूनिट प्लेस चाहिए k स्क्वायर प्लस 2 to the power k। mod 0 आने का मतलब क्या होगा, राइट? 10 से डिविजिबल, राइट? मतलब जो भी है वो k की वैल्यू जो है वो 10 लैम्डा के फॉर्म में होगी। अब मेरे पास k अगर 10 लैम्डा के फॉर्म में है तो 10 लैम्डा प्लस जो भी मेरे पास है 2 to the power 10 लैम्डा, ये फॉर्म मेरे पास है, राइट? तो k मेरे पास ऑब्वियसली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 to the power k की ना, so 2 to the power k, this number is k, right? k की जो नंबर मेरे पास आए हुए हैं, this number, ये अपने आप में डिविजिबल बाय 0 mod 10, right? तो 2 से डिवाइड करने पर always you are getting, right? By cyclicity again we can say this, right? पहले नोट कर लो जल्दी से देखो इसे, फिर मैं बताता हूँ। अभी बताता हूँ पीयूष। ओके, नोट कर लिए सभी लोग? एक मिनट पहले इसे कंप्लीट कर लूँ पीयूष, फिर बताता हूँ। अब यहाँ से मेरे को दो बातें मिल गई। एक तो ये 10 से डिविजिबल है ही, और जो नंबर मेरे पास गिवन था, अगर ध्यान से देखो, ये नंबर जो मेरे पास गिवन है, राइट, ये 4 से डिविजिबल है। मतलब जो नंबर है मेरे पास k का फॉर्म आ रहा है, वो लैम्डा भी मेरे पास इवन है। मतलब जो नंबर ये है, ये तो 0 ही देगा मॉड 10 के लिए, और ये नंबर देगा 2 to the power 4 के साथ में कोई पावर मेरे पास दे देगा, मान लेता हूँ n mod 10। तो ये मेरे पास 0 आ रहा है, और ये 2 to the power 4 में ऑलवेज 6 देगा, और 6 का पावर मैं कुछ भी रखूंगा, दैट इक्विवेलेंट टू 6 mod 10, राइट? सो 6 इज द आंसर इन दैट केस नाउ, राइट? तो आई गेस कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, पहले उनको मैं देख लूं। यस ध्रुव, यस ध्रुव, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। सर आपने वहाँ पे आई डोंट नो कि आप पे वो 10 लैम्डा स्क्वायर नहीं होना चाहिए हैं? तो जो यहाँ पे जो थर्ड लास्ट लाइन में लिखा है 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 to the power 10 लैम्डा, यानी सर इसी वैल्यू थी ना, हाँ, k स्क्वायर। तो पर आपने बताया ना कि 10 भी डिविजिबल होता है, 100 भी डिविजिबल होता है 10 से, फर्क क्या? ये सर फर्क बाद में कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 10 है तो उसके बाद में 0 हो जाएगा, वो मैं समझ गया, बट हाँ, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना अपने को ना, इसलिए मैंने उस पर कंसंट्रेट ही नहीं किया ना। अच्छा ओके सर, मुझे लगा मैं कुछ लग के पकड़। सर आपने 10 लैम्डा को 4 to the power n के फॉर्म में कैसे किया, वो नहीं समझा। ये नंबर देखो ना बेटा, जो गिवन है, ये 2008 स्क्वायर प्लस 2 to the power 2008, दोनों 4 से डिविजिबल है। मतलब k ऑलवेज 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। 2008 4 से डिविजिबल है, राइट? एज वेल एज ना, एज वेल एज 2 to the power 2008 भी 4 से डिविजिबल है। तो आई एम सेइंग दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 2008। ओके, तो 4 से डिविजिबल है एंड 10 से भी डिविजिबल है, तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को मिला के अगर बोलूँ तो 20 से डिविजिबल, या नंबर आगे भी जा रहा होगा, राइट?
Okay, you can down your hand please. ना now तो वैरायटी को समझना, ये सब, ये हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड के कंपटीशन का, राइट? तो ओके, एक इसी पर बेस और क्वेश्चन बढ़ाएं. Write down. Next. ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा कम रखता हूँ. 17 to the power 17 लास्ट 2 डिजिट. पहले यहां से ही स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, राइट? आराम से, आराम से. लास्ट 2 डिजिट ऑफ 17 to the power 17. देवांश, वेरी गुड. देखता हूँ, कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहा ना? Okay, okay. Aditya, yes, raise your hand, please. Yes.
यस सर। क्या इनविटेशन कार्ड चाहिए? अच्छा सर, नहीं नहीं सर, सर 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ऐसे, कितना वाला बताओ यस पहले। सर, 17 स्क्वायर का रिमाइंडर लिया और फिर 17 स्क्वायर का रिमाइंडर लेकर लास्ट 2 डिजिट्स जो आते हैं सर उसके उनको ऐड करते गए सर। तो वैसे एक आता है जहाँ पर हम लोग 17 + 1 करके ला सकते हैं आंसर। वेरी गुड, और फिर सर दूसरा तो CRT था सर, वो सब कर रखा है सर 1-2 बार, इसलिए याद ही थे सर आंसर, इसलिए इतना। वेरी गुड, हाँ सर, 25 एंड 4 के साथ CRT लेकर कर सकते थे सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। क्या पसंद है खाने में तेरे को? यस सर। क्या पसंद है खाने में? पिज्जा? दिल खोल के मांग सकता है तू सर से, शर्माना नहीं। बहुत कम सर ऐसा मौका देते हैं। सर पिज़्ज़ा ही पसंद है। पिज्जा पसंद है, कल मंगवा के खा लेना, ठीक है? चलो हाँ नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट देवांश, रेज योर हैंड। यस, यस, टेल मी। आर सर यू? पहले तो 7 raised to 17 लिखा। बट 17 raised to 17 is equal to 7 raised to 17 mod 10। 100 चाहिए बेटा, लास्ट 2 डिजिट है। हाँ सर, पहले 10 किया फिर 100 किया। हम्म, कैसे किया? एक्सप्लेन एक्सप्लेन दिस प्लीज। सर पहले mod 10 लिया, ठीक है, फिर वो सॉल्व करके लास्ट डिजिट आया 9। चलेगा। फिर mod 100 लिया, फिर उससे भी सॉल्व किया तो तो फिर 7 आया। नहीं तो अगर मॉड 100 से 7 आया तो मॉड 100 में जो आया वही आंसर हो जाएगा ना, तो 10 निकालने की जरूरत क्यों पड़ेगी? गेटिंग माय पॉइंट? एक बार चेक करो बेटा। अमन, हाँ सर। सुयस, केविन, एनीवन? एंड आदित्य, देवांश अपने अपने हाथ ले जाओ। सुयस, केविन, एनीवन? मैं स्टार्ट कर लूं? आदित्य ने बहुत बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया। यस सुयस? गो अहेड बेटा। सर पहले तो 17 स्क्वायर किया mod 100 तो 89 आता है, रिमाइंडर तो -11 किया तो 17 raised to 16 तक का रिमाइंडर आ गया और उसके बाद 17 मल्टीप्लाई किया तो फिर लास्ट 2 डिजिट हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब एक जीरो लाना इज इम्पोर्टेंट, राइट? So very good. The first method you can say is 289. एक बड़ा अच्छा सा नंबर आ गया मेरे पास, and 289 to the power 8 into 17, right? Right. उसके बाद 289 we can write 300 minus 11 to the power 8 into 7, and 300 is already divisible by 100, so 11 to the power 8 into 17, right? Okay, so 11 to the power 8, we know that, well, just we have to go for the 121 to the power 4 into 17. 121 to the power 4, we can write 21 a power 4 into 17, right? 21 is 441 a square, 17, 441 is 41 into 41 into 17. इसी की बात हो रही है, right? यहाँ से वर्किंग करना मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब वी कैन ब्रेक आउट द नंबर्स, राइट? लेकिन राइट, सीआरटी आप लोगों ने बताया नहीं यार, कुछ नंबर नाम और देने का। चाइना का नाम नहीं लेना चाह रहा, आपको चाइना का नाम लेवाना चाह रहे हो। बताओ, इंडिया में रह के ऐसा काम करोगे आप लोग? 17 to the power 17, राइट?
विदेशी रिमाइंडर थ्योरम, कोविड थ्योरम, स्मॉल आइज, ये कैसा है, ये देखो कितना गंदा बच्चा है, ये सब नाम जो मॉड 4 एक बार निकालता हूँ, राइट, और 17 to the power 17 is 1 only, and 17 to the power 17 को मैं मॉड 25 करना चाहता हूँ, राइट। ये भी कुछ सिंपल सा नंबर आ जाए तो मेरे लिए काम कर जाएगा, राइट। तो 17 को मैं लिख सकता हूँ -8 to the power 17, राइट, -8 to the power 17 ना। मैं एक बार 4 के लिए लेना चाह रहा हूं, राइट, एक बार मैं 4 के लिए लेना चाह रहा हूं, और एक बार मैंने जो काम किया 25 के लिए वो लेना चाह रहा हूं, राइट। ये दोनों पर अगर मैं वर्क कर पाऊंगा तो मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाना विल बी वेरी सिंपल, राइट। सो अब 25 के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो दिस इज 25, राइट। राइट, 2 to the power 3, 2 के पावर में अपने आप वो चला जाएगा, राइट। एंड वी कैन राइट माइनस ऑफ 2 to the power 3, 2 to the power 51 मॉड 25, राइट। क्या नंबर लूं, तो 2 to the power 10 मेरे को याद आ रहा है, ये नंबर 1024, राइट, to the power 5 into 2, राइट। तो 2 to the power 10 is nothing but -1, 1025, मतलब 25 से डिवाइड करेंगे 100 तो होगा ही, 24 की जगह 25 होगा तो -1 आ रहा है वहां से, सो दिस विल बी -1, तो दिस इज 2 ओनली मॉड। कितना प्यारा सा नंबर आ गया मेरे पास, नहीं? तो मेरे पास दो चीजें आ गई, एक आ गया 17 to the power 17 congruence to 1 mod 4, राइट। ये सब लोग घूमते फिरते रहते हैं, कुछ देर में आगे जाते, कुछ देर में आ जाते हैं वापस, right, and 17 to the power 17 is equivalent to 2 mod 25, right। अब इसमें मेरे को अप्लाई करने हैं, संयुक्ता माइनस नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आ रहा होगा ना, ये वाले में भी तो माइनस आ रहा होगा, राइट। तो दोनों में माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट्स द रीजन आई गेस माइनस आना नहीं चाहिए, बट आप लोग कैलकुलेट कर लो एक बार। अब ये दोनों में मेरे को चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, यस अमन। सर 17 to the power 17 1 कैसा है सर मॉड 4, आपने क्या किया उसमें? ओ 4 जा 16, हाँ हाँ ओ 4 जा 16, दैट्स इट। ये वाला सॉल्यूशन देखो ना, ये सॉल्यूशन देखो, सीआरटी तो आप लोग लगा ही लोगे ना। तो बहुत सारे वेरिएशन हैं एंड बहुत सारे इस तरह के वर्किंग है जिसमें यू कैन यूज दिस, राइट। जो शायद कभी ये क्वेश्चन देखना भी हम लोगों को खतरनाक लगता होगा, आई गेस। डन ना भौमिक बेटा, डन? ओके, चल आगे 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 आगे, टाइम कम, नेक्स्ट नाउ few questions I am giving. 314 to the power 162 mod 7. Second, 314 to the power 164 mod 165. Right. Third, 2001 to the power 2001 mod 26. इसमें एक और टर्म आता है, दैट्स कॉल्ड सूडो प्राइम, राइट। अभी तो थोड़ा जल्दी रहेगा, लेकिन सूडो प्राइम ऐसा, जब फॉर्मन ने ये काम किया
तो फॉर्मा को ये देखने में बड़ा ये रहा कि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो a टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड p को फॉलो करते हैं, बट वो प्राइम नहीं है ना। गेट में पॉइंट, उन्होंने देखा कि a टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस टू p मतलब कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड p उन्होंने दिया, एंड बट वो नंबर दिखाई नहीं दिए कि वो प्राइम है। तो बड़ा सरप्राइजिंग सा था। अब वो प्राइम नहीं है फिर भी ऐसा वर्क कर रहे हैं, बट ये प्राइम के लिए ट्रू उन्होंने बोल के रखा हुआ था, तो एक थोड़ा सा गड़बड़ वाली कहानी हो गई, तो उसको सूडो प्राइम बोला गया। एंड और भी आगे की उसमें कहानी, बड़ा प्यारा प्यारा जुड़ा कहानी। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा उससे भी ब्रीफ करूंगा आप लोगों को, बट आज के लिए ये क्वेश्चंस, राइट, डू इट फास्ट। वेरी गुड केविन। पावर वाले क्वेश्चन एकदम ही सिंपल होते हैं, राइट। पावर का क्वेश्चन आया मतलब एक आपको क्वेश्चन देके गया, जीसीडी का क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन देके गया, राइट। तो चीजों को एकदम फिक्स करके रखना अपने लिए। आप लोगों ने 2019 के पेपर सभी लोगों ने निकाल लिए थे। नंबर सिस्टम, उनके पूरे के पूरे नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन आपको पिक करने हैं और सॉल्व करने हैं, राइट। मैं उसे डिस्कस करूंगा, कोशिश करता हूँ नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक में मैं डिस्कस करने का। अभी यू आर डूइंग ऑल 3।
वेरी गुड देवांश, अनमोल, अमन, तीनों होने चाहिए बेटा। अनमोल थोड़ा सा वाइज हो जाओ। 1 = 6 क्या होता है ये योजित? नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो रहेगा विल्सन थ्योरम ना। विल्सन थ्योरम होने के बाद विल गो फॉर एक इसके और प्रूविंग मेरे को बताने हैं, वो एकदम याद दिलाना कि सर आपने बोला था फॉर्मा का दूसरा एक प्रूविंग है वो मैं करूं। माइनस में कभी मत लिखना बेटा, माइनस है तो 25 लिख देंगे उससे। अनिस, -1 is coming ना, तो दिस 26 - 1 will be 25. क्षितिज, यस। सर वो सेकंड वाला कैसे करें? सेकंड वाला कैसे करेंगे? 165 obviously not a prime number, right? 165 को अगर मैं 2 टाइम्स कर भी दूं तो ये रिमाइंडर कितना दे रहा है मेरे को, राइट? ठीक है, देखें तो दिस इज कमिंग एज 165। 165 2 टाइम्स कर दिया 330 जा रहा है तो 16, तो -16 to the power 164। -16 is nothing but 2 to the power 4 and प्लस में ही आ जाएगा 2 to the power 4 to the power 164, राइट? 2 to the power कुछ ऐसा आ गया, राइट? ये नंबर को 165 से डिवाइड करना। 165 के बारे में व्हाट वी नो, राइट? क्या क्या नंबर है उसके साथ छुपे हुए, तो एक 31 है और एक 5। थर्टी 33 है और 5 है, राइट? ये बहुत बड़ा हिंट है क्षितिज, ये दो नंबर का कॉम्बिनेशन हो गया, एक 33 हो गया एक 5 हो गया, राइट? एंड नंबर है 2 to the power 656, राइट? एंड ये है मॉड 33, राइट? 33 के लिए व्हाट यू नो कि 2 to the power 32 इज ऑलवेज 1, राइट? तो ये 1 ही जा रहा होगा अपने आप में। सेकंड, 2 to the power 5 के बारे में भी बड़ा अच्छा काम हो सकता है कि 2 to the power 4 के साथ में जा रहा है, राइट? 2 to the power 4 to the power anything will be 1, mod 5, right? In both the way you are getting this as 1, right? तो 1 रिमाइंडर ही आने हैं मेरे पास, तो ऑब्वियसली 1 रिमाइंडर। 33 से भी डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर है, 5 से भी रिमाइंडर 1 मिल रहे हैं, मतलब दोनों के डिवीजन में रिमाइंडर विल बी 1। और या आप विदेशी वाला लगा लो रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है मम्मी? Right, whatever it is, right? You can apply the theorems on this, right? Third one is again 13 and 2, right? दोनों को मिक्स करते हुए you have to work on that, right? कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, राइट इट डाउन। बहुत अधिक नहीं दूंगा बट फिर भी you have to write it down. First question, do it fast.
13 divides 11 to the power this plus 1, right? Third, ये नंबर्स जो थर्ड क्वेश्चन में दिए हुए हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट नंबर्स. P minus 1 choose K, P minus 1 C K, congruence to minus 1 to the power K mod P. ये अलग से क्वेश्चन ना, थोड़ा सोचेंगे आप लोग, काम करें इस पे. एक और क्वेश्चन मैं देना चाह रहा हूं क्योंकि एक बड़ा प्यारा नंबर है, उस नंबर को मैं आज कहीं भी इंसर्ट नहीं कर पाया उसके लिए ना. So that's the reason I am giving you. The number is 561. Divides 2 to the power 561 minus 2. Pseudo prime की जो बात कर रहा था उसके लिए this will work, right? Mod 7. Yes, Aman. सर सूडो प्राइम्स क्या होता है सर, पता नहीं. थोड़ा सा आइडिया दिया था ना सूडो प्राइम के लिए.